ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के तहत 2 वार्ताएं सुनेंगे। हम अवतार वाणी के अंतर्गत एक दिव्योद्बोधन का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 28 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, సర్వత్ర పంచభూతానాం షష్ఠిం కించిన్ న విద్యతే పాతాళం భూతలం వస. ఎక్కడ చూచినప్పటికీ పంచమహాభూతములు తప్ప ఆరో భూతం అనేటువంటిది లేదన్నటువంటి విషయము మనం గుర్తించాం. పాతాళం నందు కానీ భూతలము నందు కానీ ఈ భూతాకాశమునందు ఎక్కడ చూచినప్పటికీ పంచభూతములే తప్ప అన్య పదార్థము లేదు. सर्वत्र पंचभूतानां षष्ठं किंचिन्न विद्यते पातालम भूतलम वसः. चहुं ओर देखने पर भी पंच महाभूतों के अतिरिक्त छठवें भूत के न होने के तथ्य से हम अवगत हो चुके हैं. पाताल में या भूतल पर, इस भूताकाश में जहाँ कहीं भी देखने पर पंचभूतों के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है. ఆధ్యాత్మ వాంగ్మయమునందు 3 ఆకాశములను గురించి తరచుగా వింటూ ఉంటాం. ఆత్మతత్వమును ఎరగగోరినటువంటి యొక్క ప్రతి సాధకుడు కూడాను, బ్రహ్మతత్వమును తెలుసుకోనగోరినటువంటి ప్రతి సాధకుడు కూడాను ఈ 3 ఆకాశముల గురించి విచారించవలసి వస్తుంది. आध्यात्मिक वांग्मय में हम प्रायः 3 आकाशों के बारे में सुनते रहते हैं. आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए इच्छुक प्रत्येक साधक को एवं ब्रह्म तत्व के बारे में जानने के लिए इच्छुक प्रत्येक साधक को इन 3 आकाशों के बारे में विचार करना पड़ता है. మొట్టమొదటిది భూతాకాశము, రెండవది చిత్తాకాశము, మూడవది చిదాకాశము. భూతాకాశం అనగా పంచమహాభూతములచే కూడినటువంటిది. అనగా పృథ్వీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఇందులో కట్టకడపడితే అయినటువంటి ఈ ఆకాశం అనేటువంటిది అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది. ఇది కేవలము శబ్దస్వరూపము తప్ప దీనికి ఆకారము లేదు. सबसे पहले भूताकाश है, दूसरा चित्ताकाश है, तीसरा चिदाकाश है.
भूताकाश का अर्थ पंच महाभूतों से युक्त अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से युक्त। इनमें जो अंतिम आकाश है वह अत्यंत सूक्ष्म है। यह मात्र ध्वनि स्वरूप होने के अतिरिक्त इसका कोई आकार नहीं है। ఇక రెండవది వాయువు. దీనికి ఒక ఆకారము లేదు. ఇది రెండు గుణములతో కూడినటువంటిది, శబ్ద స్పర్శ. ఇంకా మూడవది అగ్ని. ఇది కంటికి కనిపించేటువంటిది, శబ్ద స్పర్శ రూపం. इसके बाद दूसरा वायु है। इसका भी आकार नहीं है। यह दो गुणों से युक्त है, ध्वनि और स्पर्श। इसके बाद तीसरा अग्नि है। यह आंखों से देखा जा सकता है। ध्वनि, स्पर्श, रूप भी हैं। నాలుగవది జలము. ఇది కూడాను కంటికి కనిపించేటువంటి స్వరూపం. ఇందులో శబ్ద స్పర్శ రూప రసం కూడా ఉంటున్నది. భూమి ఇది దృశ్యగోచరమైనటువంటిది. ఇందులో శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు కూడా ఉంటున్నవి. మొదట మూడు భూతములు కూడాను స్వరూపం కలిగినటువంటిది. కడపటి రెండు కేవలం గుణముతో కూడినటువంటివే కానీ రూపంలో లేవు. इनके बाद चौथा जल है। यह आँखों से देखा जाने वाला स्वरूप है। इसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप और रस भी हैं। भूमि यह दृष्टि के लिए गोचर है। इसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी हैं। इनमें पहले तीन रूप से युक्त हैं, अंतिम दो मात्र गुण से युक्त हैं, इनके रूप नहीं हैं। అయితే ఈ భూతాకాశమునందు ఉన్నటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను అస్థిరము, చలనముతో కూడినటువంటిది. నిరంతరము కూడాను మార్పు చెందినటువంటివి. కేవలము మార్పు మాత్రమే కాకుండా పరిణామం కూడాను పొందినటువంటివి. ఇది చలనముతో కూడినటువంటివి. ఇలాంటి పంచభూతముల యొక్క తత్వమును మనం విచారించినప్పుడు మరికొన్ని దీని ఎందుకల కొన్ని గుణములను మనము తెలుసుకొనవచ్చు. इस भूताकाश में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अस्थायी और विचलन गुण वाले हैं, सतत परिवर्तनशील हैं। मात्र परिवर्तनशील ही नहीं, परिणाम प्राप्त करने वाले भी हैं, विचलन गुण वाले हैं। ऐसे पंचभूतों के तत्वों के बारे में विचार करने पर इनमें निहित कुछ अन्य गुणों को भी हम जान सकते हैं। ఒక నిమిషంలో ఒక ప్రదేశమునందు ఉండేటువంటి అణువులు మరో నిమిషంలో మరొక స్వరూపాన్ని ధరిస్తూ ఉంటుంటాయి. స్వరూపమును మార్చటమే కాకుండా ప్రదేశమును కూడాను మార్చగలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పదార్థములందు ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువు కూడాను క్షణమునకు కూడాను ఎక్కడ మార్పు చెందును, ఎక్కడ మార్పు కలిగించునో చెప్పుటకు వీలు కాదు. మానవుని శరీరం ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రతి అణువు కూడాను క్షణము కూడాను మారుతూ ఉండాలి. एक पल में एक स्थान पर स्थित अणु अगले ही पल एक अन्य रूप को प्राप्त करते हैं। इनके मात्र स्वरूप ही नहीं परिवर्तित होते हैं, बल्कि वे स्थानांतरित भी होते हैं। इन पदार्थों में निहित प्रत्येक अणु पल पल कैसे परिवर्तित होंगे, कैसे परिवर्तन के कारक होंगे, बताना संभव नहीं है। मानव शरीर में निहित प्रत्येक अणु पल पल परिवर्तित हो रहा है। ఇది అనంతమైనటువంటి సముద్రం యొక్క అలల వంటివి. ఈ సముద్రం యొక్క తరంగములకు హద్దు అనేటువంటిది లేదు.
అయితే ఒక్క తరంగమునందు ఉండేటువంటి ఒక నీటి బిందువు మరొక తరంగంలో లీనమైపోతుంటుంది. ఈ విధంగా తరంగంలో ఉన్నటువంటి నీటి బిందువులు మరొక తరంగంలో కలవటం, ఆ తరంగముల యొక్క నీటి బిందువు ఇంకొక తరంగంలో చేరటం, ఈ విధంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంటుంది. ये अनंत सागर की लहरों के समान हैं। सागर के इन लहरों की कोई सीमा नहीं है, परंतु एक लहर में निहित एक पानी की बूंद दूसरी लहर में समा जाती है। इस प्रकार एक लहर की बूंदों का दूसरी लहर में समा जाना और फिर उन पानी की बूंदों का किसी दूसरी लहर में समा जाना होता ही रहता है। ఈ భూతాకాశం యొక్క తరంగములను మనము ప్రత్యేకంగా విచారించుటకు పూనుకొన్న ఇది అసాధ్యమైనటువంటి విషయము. ఇందులో మానవత్వం అనేటువంటిది ఒక తరంగము, దేవత్వము అనేటువంటిది మరొక తరంగము, దానవత్వం అనేటువంటిది ఇంకొక తరంగము. ఇదే విధంగానే పశుపక్షి మృగాదుల తరంగములు కూడాను ఈ యొక్క మహాపంచభూతములు యందు లీనమై ఉంటున్నవి. भूताकाश से संबंधित इन लहरों पर विचार करना असंभव है। इसमें मानवता एक लहर है, दिव्यता एक लहर है, दानवता एक लहर है। इसी प्रकार पशु, पक्षी और जानवर रूपी लहरें इन पंच महाभूतों में विलीन हैं। ఒక తరంగముల యొక్క నీటి బిందువు మరొక తరంగంలో లీనమైనట్టుగా ఒక మానవత్వం అనేటువంటి యొక్క తరంగముల యొక్క అంశము మరొక తరంగములో లీనమైపోవచ్చును. కనుక ఏ తరంగము యొక్క బిందువు అంశము ఏ తరంగములో లీనమవును అనేటువంటిది కూడాను చెప్పుట అసాధ్యము. కనుకనే జీవితము కూడాను తరంగముల యొక్క స్వరూపమే. एक लहर में निहित बूंद जिस प्रकार दूसरी लहर में समा जाती है, उसी प्रकार मानवता रूपी लहर का अंश किसी अन्य लहर में समा सकता है। किस लहर की बूंद अथवा अंश किस लहर में विलीन होगा बताना असंभव है। अतः जीवन भी लहरों का ही स्वरूप है। మననాతీతి మనహ అని నిరంతరము కూడాను మననత్రాణములతో కూడినటువంటి యొక్క మనస్తత్వంతో ఉండినటువంటిది మానవత్వము. ఇది అనిత్యము, ఇది క్షణికము, ఇది నశ్వరము, ఇది క్షీణము, ఇది పరిణామము. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క షడ్వికారములతో కూడినటువంటి యొక్క ఈ మహాపంచభూతముల యొక్క సంబంధాన్ని మనం గుర్తించుకొనలేక ఏదో కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క మానవత్వాన్ని మనము క్షణికమైనటువంటి మానవత్వాన్ని లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని ఇది ఏ శాస్త్రమని భ్రమిస్తున్నాము. इसीलिए मननात् इति मनः कहा गया है। सतत चिंतन और त्राण से संयुक्त मानसिकता से ही मानव जीवन युक्त है। यह अनित्य है, यह क्षणिक है, यह नश्वर है, यह क्षीण होने वाला है, यह परिणाम प्राप्त करने वाला है। 6 प्रकार के विकारों और पंच महाभूतों से युक्त मानव जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए उसे ही हम शाश्वत मान रहे हैं। ఇట్టి మహాపంచభూతముల యొక్క సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క భూతాకాశములో లక్షల సూర్యచంద్రాదులు ఉంటున్నారు. ఇంకా గ్రహణములు ఉపగ్రహములు కూడా కోట్లకు ఉంటున్నాయి. అగణితమైనటువంటి యొక్క జీవరాశులు కూడాను ఉంటున్నవి. దృశ్యగోచరమైనటువంటి యొక్క జగత్ అంతయు కూడాను భూతాకాశం యొక్క బిందువే. पंच महाभूतों से संबंधित ऐसे भूताकाश में लाखों सूर्य और चंद्रमा हैं, ग्रह और उपग्रह करोड़ों में हैं, अगणित जीव जंतु भी हैं। दृष्टिगोचर होने वाला यह जगत भूताकाश की एक बूंद मात्र है। ఈ విశాల జగత్తునందు ఏదో ఒక మూల నిక్కినున్నటువంటి యొక్క భూగోళము, ఈ భూగోళమునందు ఒక చిన్న దేశము, ఈ చిన్న దేశములో ఒక చిన్న ప్రాంతము, ఈ చిన్న ప్రాంతములో ఒక చిన్న జిల్లా, ఈ చిన్న జిల్లాలో ఒక చిన్న గ్రామము, ఈ చిన్న గ్రామములో ఒక చిన్న ఇల్లు, ఈ చిన్న ఇంటిలో ఒక చిన్న దేహము. ఇట్టి చిన్న దేహము ఇట్ట విశాలమైనటువంటి జగత్తును చూచి అహంకార పట్టం లోపల హాస్యాస్పదమని చెప్పవచ్చు.
इस सुविशाल जगत के किसी कोने में यह भूगोल छिपा सा है। इस भूगोल में एक छोटा सा देश है। इस छोटे से देश में एक प्रदेश, इस छोटे से प्रदेश में एक छोटा सा जिला, इस छोटे से जिले में एक छोटा सा गांव, इस छोटे से गांव में एक छोटा सा घर, और इस छोटे से घर में एक छोटी सी देह। ऐसी छोटी सी देह का विशाल जगत को देखकर अहंकार करना हास्यास्पद ही है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित पद्य गुरु गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों की भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों पर आधारित व्याख्या सुनेंगे। प्रस्तुत है इसका तीसरा एवं अंतिम भाग। इसे लिपिबद्ध किया है श्री सत्यसाई प्रसार माध्यम केंद्र की टीम प्रेमवाणी के सहयोग मंडल की सदस्या श्रीमती खुशी भागवत जी ने। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा नमस्कार उन सद्गुरु को जो इस समस्त ब्रह्मांड में अखंड चैतन्य रूप से इस चर और अचर जगत में व्याप्त है और जिन्होंने मेरी चेतना को भी उस ब्रह्म तत्व की ओर दर्शाया है, उनको मेरा प्रणाम। गुरु की विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका गुणगान स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से गुरु गीता नामक स्तोत्र में किया है। वास्तव में यह स्तोत्र स्कंद पुराण का एक भाग है, जिसमें कुल 352 श्लोक हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। इसमें भगवान शिव ने गुरु क्या है, उनका महत्व क्या है, गुरु की पूजा करने की विधि, गुरु गीता को पढ़ने के लाभ आदि का वर्णन किया है। जब स्वयं महादेव गुरु की आवश्यकता और विशेषता को महत्व देते हैं, तब और किसी प्रकार की शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु का ज्ञान ही हमें इस भवसागर से पार ले जा सकता है। इसलिए गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य, कर्म और धर्म तीनों है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः।
जो अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अपने गुरु के प्रति भी जो ऐसा ही भाव रखते हैं, केवल उस भक्त को ही ये परम सत्य का बोध स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं हमें सुनने को मिलती है, जिनसे यह पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे का एक कारण यह भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसी अद्भुत रचनाएं की, उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म काल माना जाता है। इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वास्तव में गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, और शायद यही कारण है कि भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के सानिध्य में रहकर व्यवहारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और गुरु की महत्ता को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित पद्य गुरु गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों की भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों पर आधारित व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। बाबा पुनः आ गए हैं। पुट्टपर्ती में उन्होंने भक्तों के अनुरोध पर दशहरा और जन्म दिवस के उत्सवों पर इसी प्रकार से जुलूस निकालने की अनुमति दी थी और लगभग सन 1954 तक ऐसे ही जुलूस निकाले जाते रहे थे। शिरडी में बाबा का खूब श्रृंगार किया जाता था। उनके सिर पर मुकुट धारण करवाया जाता था और गले में हीरे मोतियों की मालाएं पहनाई जाती थीं। वर्षों पूर्व बेंगलोर से साकम्मा भी सत्य साई बाबा के लिए इसी प्रकार के आभूषण ले आई थीं। इस थोड़े समय के जुलूस में उनके सिर की पोशाक कई बार बदली जाती। अब भी जब भक्तगण विशुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं तो बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं और जुलूस निकालने के लिए अनुमति दे देते हैं, जैसा कि शिवाजी नगर, कल्याणपुरम, उटंगमंड आदि में किया। हालांकि अब पहले वाला प्रदर्शन और तड़क भड़क नहीं होता। शिरडी में बाबा अपनी सरकार, अपना दरबार, अपना कोषागार आदि का उल्लेख करते थे। अब भी बाबा स्वयं को सत चक्रवर्ती कहते हैं और अपने भंडार, अपने कोषागार और कोषाध्यक्ष शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिरडी में बाबा कहते थे, ये द्वारकामाई डाकुरनाथ की डंकापुरी, विट्ठल की पंढरी और रणछोड़ की द्वारका है।
बाबा ने कहा है कि वर्तमान द्वारकामयी यानी प्रशांति निलयम, दूसरी मथुरा, दूसरा बद्रीनाथ, दूसरा तिरुपति है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा समुद्र में टापू पर बसाई नगरी को द्वारका नाम दिया गया था, जिसका अर्थ होता है वो स्थान जिसके द्वार चारों वर्ण के लोगों के लिए खुले हों, जहां चारों प्रकार के भक्तों अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानियों के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो। वास्तव में जहां भगवान स्वयं विराजते हों, वो द्वारका, शिरडी और पुट्टपर्थी ऐसा ही स्थान होगा। बाबा ने कहा है, इस प्रशांति निलयम के चारों ओर कोई चार दीवारी या किसी प्रकार की घेराबंदी नहीं है, क्योंकि भगवान सभी मार्गों और दिशाओं से आने वाले लोगों के लिए सुलभ हैं। कृपा के उपहार पाने को सभी का स्वागत है। शिरडी में साईं बाबा की इच्छा थी कि बूटी द्वारा निर्मित भव्य भवन के प्रांगण में मुरलीधारी श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाए, किंतु अपनी इस इच्छा की पूर्ति के पूर्व ही उन्होंने शिरडी त्याग दिया। शायद इसलिए बाबा ने अपनी उस पूर्व इच्छा की पूर्ति के लिए मुरलीधर श्री कृष्ण की मूर्ति प्रशांति निलयम के बरामदे में लगवाई है, जो प्रार्थना में उठने वाले हाथों की वंदना का केंद्र है। प्रशांति निलयम के मुख्य पूजा गृह में भी मुरलीधर विराजमान है। वृंदावन के मोहक उद्यान में भी मुरलीधर श्री कृष्ण की 2 मूर्तियां हैं। सत्य साई बाबा के जीवन को समझने वालों के लिए साई सच्चरित का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि दोनों साई एक हैं। जब रामकृष्ण मिशन के एक ब्रह्मचारी उदर रोग से मुक्ति पाने के लिए बाबा के पास आए, तो बाबा ने उनसे अपने गुरु महाराज से ही प्रार्थना करने के लिए कहा और सही ढंग से ध्यान करना भी सिखाया, जिससे अधिक सफलता प्राप्त हो। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गुरु महाराज रामकृष्ण देव उनको रोग से मुक्त कर देंगे और उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। शिरडी में भी तो बाबा यही कहा करते थे, जिसका सहारा पकड़ा है उसे छोड़ो मत, अपुला बाप तो अपुला बाप, अर्थात पिता तो केवल एक ही होता है। तुम अपनी इच्छा से अपने स्वामी को नहीं बदल सकते। साईं बाबा ने गोपाल स्वामी के अनुयायियों को गोपाल स्वामी के रूप में और रघुनाथ महाराज के शिष्यों को रघुनाथ महाराज के रूप में दर्शन दिए। साईं बाबा में सभी संत समाये थे। अब भी वही बात है, सब उनमें समाये हैं। प्रशांति निलयम में रहते हुए बाबा ने स्वामी अभेदानंद को रमण आश्रम में रमण महर्षि के रूप में, रामानंद राव को शिमोगा में सज्जनगढ़ के रामदास के रूप में दर्शन दिए हैं। साईं बाबा दूसरे संतों और गुरुओं के लिए रखी गई भेंट भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही सब कुछ हैं। बाबा ने अनेकों लोगों को कहा है कि वे उनकी अनेकों वर्षों से देखभाल और सुरक्षा करते आ रहे हैं। लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि यह कैसे संभव है, जब वे उनके पास पहली बार आए हैं। बाबा उन्हें समझाते हैं कि जिस गुरु या इष्ट को वे अब तक मानते भजते आए हैं, वे बाबा ही हैं। हिंदी प्रचार सभा बेंगलोर के सचिव को एक अर्थपूर्ण अनुभव हुआ था। बहुत वर्ष पहले उनके एक मित्र के घर में जब बाबा पधारे तो वे वहीं थे। उनके मित्र तथा अन्य उपस्थित लोगों ने बाबा के चरण स्पर्श किए, किंतु उनको इसमें संकोच हो रहा था। मन में यह भय उठा कि जब सबने चरण स्पर्श किए हैं और वो अकेले रह गए हैं, तो उनका यह व्यवहार किसी महापुरुष के प्रति अभद्रता या अवमानना न समझ लिया जाए। अतः उन्होंने भी बाबा के चरणों में अन्य सभी की तरह साष्टांग प्रणाम किया, किंतु मन में इस भाव के साथ कि वो बाबा के चरणों में नहीं बल्कि अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उनके गुरु मद्दूर के शिव मंदिर में रहते थे। जब वो सज्जन प्रणाम करके खड़े हुए तो बाबा ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आपका प्रणाम आपके गुरु के पास मद्दूर पहुंच गया है। इस प्रकार उन्हें ज्ञान हुआ, जैसा कि शिरडी में लोगों को ज्ञान हुआ था कि बाबा सभी आध्यात्मिक गुरुओं और विभूतियों में विद्यमान दैवी प्रवाह हैं। दोनों साई की एकता उनके द्वारा दी जाने वाली उदी
अर्थात विभूति से भी होती है। शिरडी में विभूति द्वारका माई की धुनी में से दी जाती थी और अब दिव्य हथेली से, क्योंकि उस समय बाबा शिरडी में एक स्थान पर रहते और अब बाबा भ्रमण करते, बाहर जाते, इसलिए धुनी सदा साथ साथ नहीं रह सकती। ऊदी और शिरडी साई बाबा के संबंध में एक मनोरंजक तथ्य का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। शिरडी साई बाबा ऊदी पर एक भजन गाया करते थे जो अमर हो गया है। रमते राम राम आयोजी आयोजी, ऊदियों की गुनिया लायोजी। वो कौन राम है जिसको ऊदी की गुनिया भर भर कर लाने के लिए बाबा बुला रहे थे? रामायण के राम तो विभूति नहीं बांटते थे। ऊदी तो बाबा का स्वयं का विशेष उपहार था, जिसके द्वारा वे मनुष्य को शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त कर भौतिक धरातल से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक राह पर लगा देते थे। शिरडी में बाबा ऊदी की गुनिया भरकर नहीं रखते थे। ये तो उनका भविष्य के लिए संकेत था, जो अब हमारे सामने प्रकट है, जब हम देखते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों की लंबी कतारों के बीच बाबा टोकरी या थैलों में से निकाल निकाल कर विभूति की पुड़िया सैकड़ों हजारों आतुर हाथों में बांटते हैं। बाबा ने जब अपने ऊपर पक्षाघात या मैसूर के डॉक्टर के निदान के अनुसार ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस का आक्रमण अपने ऊपर लिया, तो भक्तों के रक्षार्थ अपने इस शरीर पर पहले लिए इस प्रकार के रोगों के आघातों की ही नहीं, अपितु शिरडी रूप में भी उन्होंने अपनी पूर्वदेह पर इस प्रकार के जो आक्रमण लिए थे उनकी याद हुआई। शिरडी में भी उन्होंने दादा साहब खापर्डे के पुत्र की 4 पीड़ादायक गिल्टियां अपने शरीर पर ले ली थीं और उसके स्थान पर सारी पीड़ा स्वयं सहन की थी। लड़के की मां को गिल्टियां दिखाते हुए बाबा ने कहा था, देखो भक्तों के लिए मैं किस प्रकार कष्ट सहन करता हूं, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। जब हम बाबा को यह कहते सुनते हैं कि विवेकानंद का पुनर्जन्म हुआ है, वो श्रीलंका में बड़े हो रहे हैं, वो आएंगे और मेरे कार्य में सम्मिलित हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने एक दिन अचानक कहा था, या जिस व्यक्ति ने विवेकानंद की अंग्रेजी में सर्वप्रथम जीवनी लिखी थी, उसने कल रात पश्चिमी समुद्र तट पर कुट्टीपुरम में एक झोपड़ी में जन्म लिया है। बड़ा आकर्षक बालक है और बड़े बड़े चमकीले नेत्र हैं उसके। तो हमें शिरडी साईं बाबा की बातें याद आ जाती हैं, जब वे अपने आसपास बैठे लोगों से सर्पों, मेढकों, गाय और बकरियों के पूर्व जन्म की बातें बताने लगते थे। अपने भाषणों में बाबा ने कई बार कहा है, मैं तुम सबका भूत, वर्तमान और भविष्य अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे ज्ञात है कि तुम कोई कष्ट क्यों भोग रहे हो और उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। प्रशांति निलयम में की जाने वाली ये घोषणाएं शिरडी की द्वारका माई में कही बातों की प्रतिध्वनि हैं। बाबा कहते हैं, तुम कितने मूर्ख हो, आते हो कल्पतरु के पास और मांगते हो थोड़ा सा कॉफी पाउडर। किसी बहुत बड़ी दुकान में पहुंचकर एक तौलिया मांगने जैसा व्यवहार करते हो तुम। शिरडी में भी बाबा कहते थे, जब मैं तुम्हारे सुंदर सुनहरे गोटे वाला रेशमी वस्त्र देने के लिए तैयार हूं, तो फिर चीथड़ों की चोरी क्यों करते हो। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे।
जब रामकृष्ण परमहंस जी के जीवनी पर ड्रामा समाप्त हुआ तो एक बार ऐसा प्रयोजन बना कि सब बच्चों ने स्वामी से अनुरोध किया कि स्वामी आप आइए और हमारे हॉस्टल में हमको इंटरव्यू दीजिए और हम सबसे बात करिए। अब उस समय मात्र 100-125 बच्चे थे और सब इर्द गिर्द बाबा के बैठना चाहते थे, जो कि प्रशांति मंदिर में पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि प्रशांति मंदिर में बहुत से डिवोटीज भी होते थे। वृंदावन में चूंकि स्वामी का बंगलो था, अपना अलग मकान था और उसका गेट अलग था, उसकी दीवार अलग थी, और जब बच्चे एक बार अंदर बैठ जाते थे तो केवल कृष्ण और उनके गोप और गोपिकाएं होती थी, ऐसा प्रतीत होता था। तो हम सब लोगों ने बाबा से बहुत प्रार्थना करी कि बाबा आप आइए और आप हमको एक प्रवचन दीजिए और हमसे एक इनफॉर्मल रूप में वार्ता करिए। तो बाबा मान गए और एक दिन वे आए। उस दिन हम सब लोगों ने अपने हॉस्टल जो है उसकी पूरी साफ़ सफाई करी, उसको पानी से धोया, फूलों से सजा दिया, अगरबत्तियों से महका दिया, स्वामी का एक बहुत सुंदर सा चित्र लगाया, उसके आसपास जो वाइट शीट्स लगा सकते थे सुंदर से सुंदर वे सब लगाई, कुछ दीवार पे जो निशान आदि थे उसके ऊपर भी वाइट शीट्स लगा करके उनको ब्लॉक कर दिया और इस वेट में हो गए कि स्वामी कब आएँ और हम कब स्वामी के दर्शन करें। उस दिन मुझे वार्डन ने बुला करके बोला कि स्वामी चाहते हैं कि तुमको चूंकि फर्स्ट प्राइज़ मिला था माय लाइफ इन श्री सत्य साई कॉलेज पर एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में, भाषण प्रतियोगिता में, तो आज तुम उसी विषय पर बाबा के समक्ष पहले तुम बोलोगे, उसके उपरांत बाबा अपना प्रवचन देंगे। अब बाबा आए और मुझे पहली बार बाबा के समक्ष भाषण देने का मौका मिला और धारा प्रवाह भाषण दिया क्योंकि बाबा के साथ रहने पे कॉन्फिडेंस आ गया था। और जो ही भाषण समाप्त हुआ तो बाबा ने मुझे बहुत प्रेम दिया, मुझे बुलाया, अपने चरणों के अंदर बिल्कुल लपेट लिया, बार बार चरण स्पर्श दिए और मुझे बार बार मेरी पीठ ठोकी, 1 बार 2 बार 3 बार, और बाबा ने कहा बहुत सुंदर बोले, तुम्हारी हिंदी कितनी सुंदर है, तुम्हारा भावों की अभिव्यक्ति कितनी अच्छी है, तुमने कितने अच्छे तरीके से बोला। वार्डन को भी बोला, उनके साथ में जो बाबा के साथ अंदर कमरे में रहते थे रूपक चंद कोटी जी, उनको भी बोला और उन्होंने भी अपना सिर हिला करके बाबा को बोला हाँ स्वामी बहुत अच्छा बोले हिंदी में। वो असम के थे तो वे हिंदी अच्छे से समझते थे। तो इस तरह बाबा ने अपनी खुशी का इजहार किया। तो यह एक बहुत ही सुंदर घटना थी जो कि बाबा के समक्ष पहली बार बोलने का अनुभव हुआ बच्चों के सामने, और किस तरह बाबा ने बिल्कुल अपने प्रेम से सराबोर कर दिया। अब रोज़ का हमारा रूटीन था कि जब भी दर्शन होते थे बाबा के तो हम लोग शाम के वक्त बाबा के जब दर्शन समाप्त हो जाते थे, आरती होती थी, तो बाबा भोजन करने के लिए अंदर चले जाते थे और मात्र 4 या 5 मिनट में तो बाबा का भोजन भी समाप्त हो जाता था। पर जो बाबा के साथ आश्रम के मैनेजर्स हैं, सेंट्रल ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, दूसरे लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग, वे सब वहाँ बाबा के साथ बैठते थे। तो उस दौरान जब बाबा अंदर बैठते थे तो हम सब लोग, एक मेडिटेशन सेशन होता था मंदिर के अंदर, तो हम वो मेडिटेशन सेशन में उस ध्यान के लिए 10 मिनट के लिए जाते थे। और जब ध्यान समाप्त होता था तो आकर के जो अपर वरांडा है, जो ऊपर का वरांडा है, बिल्कुल मेन बाबा के दरवाजे के सामने, वहाँ आके खड़े हो जाते थे। और केवल 8 या 10 या केवल कई बार 4 या 5 छात्र ही होते थे क्योंकि बाकी सब बच्चे डिनर की लाइन में जाने को तैयार हो रहे होते थे। थोड़ी देर बाद ख्यालदास जी आते थे और वो इशारा करते थे कि स्वामी जी ऊपर चले गए हैं। तो उसके उपरांत हम लोग आते थे और फिर लाइन में जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि स्वामी खुद दरवाज़ा खोलते थे और देखते थे कि कौन कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है, और कई बार वह 1-1 महीने में मात्र 1 बार होता था। पर 1 महीना पूरे इंतज़ार के बाद जब भगवान दरवाज़ा खोलते थे और देखते थे कि कौन कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो बाबा अपनी प्रसन्नता जाहिर करते थे और हम सब लोगों को लगता था मान लो हमको जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज़ मिल गई कि बाबा ने हम 4 या 5 बच्चों को देख लिया कि भजन समाप्त होने के बाद, ध्यान समाप्त होने के बाद, अभी डिनर शुरू हो रहा है पर हम बाबा के इंतज़ार में खड़े हैं। जब बाबा के दर्शन हो जाते थे तो हम वहाँ जाते थे। तो आप लोगों को जो पुट्टपर्ती में पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि बीच में एक गोल चक्र बना हुआ था जिसमें सर्वधर्म स्तूप बना था और उसके सामने एक दशावतार गेट बोलते थे, और ठीक उस दशावतार गेट के सामने जहाँ वह गोल चक्र बना हुआ था एक गणेश जी की बहुत सुंदर सी प्रतिमा थी। तो मैं रोज़ जाता था और उस गणेश जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर के उनके चरणों में अपना माथा टेक करके प्रार्थना करता था कि गणेश जी मुझे विद्या और सद्बुद्धि दीजिए। अब यह मेरा नित्य क्रम था, बाबा के दर्शन करना, आरती अटेंड करना, उसके उपरांत
ध्यान 10 मिनट का करना, फिर बाबा का इंतज़ार करना, जब संदेश मिले कि बाबा चले गए हैं तो वहाँ से निकल करके आकर के गणेश जी की प्रतिमा के पास आकर के नतमस्तक होना और बोलना कि भगवान मुझे विद्या एवं सद्बुद्धि दीजिए। अब 1.5-2 महीने निकल गए, मैं रोज़ विद्या सद्बुद्धि यही चीज़ मांगता था। अब विद्या क्यों? तो मैंने कहीं पढ़ा था कि विद्या वह आभूषण है जो कोई चोर आपसे ले नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। एंड नॉलेज इज पावर। विद्या वह शक्ति है कि जिस व्यक्ति के पास हो उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। विद्यावान व्यक्ति जो है उसको हमेशा ज्ञान मिलता है। तो मैं विद्या मांगता था। और सद्बुद्धि क्यों? सद्बुद्धि इसलिए कि अगर सद्बुद्धि होगी तो सही मार्ग पर चलेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे तो स्वामी का अनुसरण करेंगे, स्वामी का अनुसरण करेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे तो स्वामी तक पहुंच जाएंगे। तो मैं नित्य क्रम से शाम के वक्त विद्या एवं सद्बुद्धि गणेश जी से यहाँ आकर के मांगता था। अब आइए, शाम को मेरा लेक्चर समाप्त हो गया और स्वामी ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। और उस दिन स्वामी ने अपने प्रवचन में प्रार्थना में शक्ति इस विषय पर स्वामी बोले। फिर स्वामी बोलते बोलते बीच में रुक गए और बोले, जितने भी मेरे भक्त हैं वे सब मुझसे कुछ ना कुछ सांसारिक वस्तु मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई इज्जत मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को अपनी लड़की की शादी करानी है। जिसकी लड़की की शादी हो गई तो वो इसके लिए बेटे की तमन्ना करते हैं, जिसके बेटा हो गया तो उसके लिए बेटी मांगते हैं। कभी कुछ हर व्यक्ति जो बाबा के पास में आता है वह धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सब चीज़ें बाबा से मांगते रहते हैं। फिर मेरी ओर देखा और ऐसे इशारा किया। मैं बिल्कुल आगे बैठा हुआ था, पर मेरे कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो मुझसे सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करते, वे मुझसे विद्या और सद्बुद्धि मांगते हैं। और मेरी ओर देखा और कहा नहीं। तो मुझे ऐसा लगा मान लो एक बाबा के प्रेम का बाण आकर के मेरे हृदय में लगा हो और बाबा ने कहा मुझे कुछ मेरे भक्त ऐसे हैं जो मुझसे सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करते, वे मुझसे विद्या और सद्बुद्धि मांगते हैं। तो मन ही मन मैंने कहा, प्रभु यह क्या लीला है आपकी? मुझे क्या पता था कि आपकी और गणेश जी की डायरेक्ट हॉटलाइन बनी हुई है बीच में। मैं तो प्रार्थना करता हूं गणेश जी से और आप तक प्रार्थना पहुंच रही है। तो मैंने बिल्कुल बाबा की ओर देखा और अपना सिर हिला दिया और मैंने कहा, जी स्वामी। फिर स्वामी हम सब की ओर मुखातिब हुए और बोले, क्यों मांगते हो भगवान से यह सांसारिक वस्तुएं? भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो प्रार्थना में मालूम है क्या मांगना चाहिए। अब हम सबको लगा कि बाबा हमसे आज कोई बहुत बड़े रहस्य की बात करने वाले हैं, तो हम सब और आगे होकर के आ गए ताकि हर व्यक्ति सुन सके कि प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। तो बाबा बोले, जब भी भगवान से प्रार्थना करो उससे किसी भी सांसारिक वस्तु मत मांगो उससे धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, मोटर, पद, कुछ भी मत मांगो। विद्या और सद्बुद्धि भी मत मांगो। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो भगवान से प्रार्थना में खुद भगवान को ही मांग लो। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो बाबा को मांग लो। और बाबा बोले, जब तुम अपनी प्रार्थना में भगवान को मांग लोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पास धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, पद, विद्या, सद्बुद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और उसका कारण मालूम है क्या है? क्योंकि भगवान के हाथ में ही तो सब कुछ है। अगर तुम धन मांगोगे तो केवल धन मिलेगा, अगर तुम पद मांगोगे तो केवल पद मिलेगा, अगर विद्या मांगोगे तो केवल विद्या मिलेगी। पर अगर भगवान को ही मांग लोगे तो मैं अपना सर्वस्व तुमको दे दूंगा। इसलिए प्रार्थना में अगर कुछ मांगना ही है तो सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब भगवान को मांगोगे तो सब कुछ तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आप 8 साल बाबा के सानिध्य में रहे तो क्या आपने कोई ऐसी घटना देखी या कोई ऐसा मिरेकल एक्सपीरियंस किया, कोई ऐसा चमत्कारिक अनुभव जिससे कि न केवल जिसके साथ ऐसा चमत्कार घटित हुआ हो वह व्यक्ति और जो देखने वाले व्यक्ति हैं वे उससे बहुत अति प्रभावित रहे हों? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो चमत्कार सबसे बड़ा भगवान इस पृथ्वी पर कर रहे थे हम सब लोगों के साथ, वह था
हृदय परिवर्तन का चमत्कार, क्योंकि आज की तारीख में मनुष्य हर तरीके से प्रभावित हो सकता है पर वह अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर पाता। तो एक घटना मुझे याद आ रही है, बात तकरीबन जनवरी 1980 की है। अचानक हमारे कॉलेज में मकर संक्रांति की छुट्टी घोषित हो गई और आसपास के गांव और शहरों से जितने भी बच्चे आए थे वे सब मकर संक्रांति का, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है, तो काफ़ी लोग अपने अपने घरों की ओर कूच कर गए। हम में से कुछ एक छात्र जो उत्तर भारत के थे, उनके लिए इतने कम समय में जाकर के वापस आना शायद संभव नहीं था। तो हम लोग बहुत खुशी खुशी पुट्टपर्ती में रुक गए, क्योंकि हमको मालूम था कि अगर हम पुट्टपर्ती में रहेंगे तो उस दौरान बाबा भी वही हैं और बाबा के साथ बिरले अनुभव भी मिलेंगे, बातचीत का मौका भी मिलेगा। और आप सोचिए कि कहाँ उस समय 125 से 150 बच्चे थे और अनायास वहाँ बच्चे घट के केवल 35-40 रह गए। तो यह सोच करके हम बहुत खुश हुए। तो मुझे याद है घटना करीब 14 जनवरी के बाद की है, 15 जनवरी की रही होगी। बाबा के एक बहुत पुराने अनन्य भक्त हैं श्री SN सिंह। ये कलकत्ता के थे और इनका स्पेंसर ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक थे। ये बाबा के काफ़ी करीबी थे और बुज़ुर्ग थे, काफ़ी गोरे चिट्टे थे, और वे जब भी आते थे तो हमेशा सफारी सूट पहन करके आते थे। और उनकी जैसे कहें अगर पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ यह थी कि जिस रंग का सूट पहना होता था, सफारी सूट, उसी रंग की गांधी टोपी भी लगाए हुए होते थे। तो कई बार हम देखते थे कि अगर सफ़ेद सफारी सूट है तो सफ़ेद टोपी लगाई होती थी, अगर उन्होंने मान लीजिए हरे नीले रंग का सूट पहना हुआ है तो उसके ऊपर हरे नीले रंग की टोपी पहनी हुई थी। और वे भगवान को बहुत प्रिय थे। जब भी वे आते थे भगवान उनसे बहुत बातचीत करते थे, उनको बहुत स्नेह देते थे और वे अनन्य भक्त थे। और उनके कई एक्सपीरियंसेस सत्यम शिवम सुंदरम में भी दर्ज हैं। और स्वामी उनको प्रेम से टोपी बोलते थे। तो उस दिन 15 जनवरी की शायद बात है, सुबह के रोज़ जैसे ही वे अपनी जेब में पत्र लेकर के बैठे हुए थे तो स्वामी उनकी ओर अग्रसर हुए और उन्होंने पत्र स्वामी की ओर बढ़ाया और स्वामी ने इशारा किया और हंस के बोला, हाँ टोपी बोलो। तो वे कुछ स्वामी से बोले तो हमें नहीं सुनाई दिया कि क्या बोले। तो स्वामी बोले, कहाँ है वह? तो उन्होंने कहा, अंकल, मेरे अंकल आए हुए हैं और वो अंकल जो हैं पीछे खड़े हुए हैं और मैं चाह रहा हूँ स्वामी आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएं और उन्हें आशीर्वाद दें। तो हम सब लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा तो जो ईस्ट प्रशांति का द्वार है, उस ईस्ट प्रशांति के द्वार की ओर एक एम्बेसडर कार खड़ी हुई थी और उसके बोनट के पास में एक व्हील चेयर पे एक भारी भरकम व्यक्तित्व के स्वामी, कम से कम 150 किलो जिनका वजन रहा होगा, और गोरे चिट्टे व्यक्तित्व, बिल्कुल जैसे सिंह साहब थे उनसे भी ज़्यादा गोरे और बिल्कुल लाल सुर्ख चेहरा लिए हुए एक व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। तो स्वामी ने कहा, ये आपके अंकल हैं? तो बोला, जी स्वामी। तो वो स्वामी बोले, इनको बुलाओ। अब जो ही इशारा किया तो सिंह साहब दौड़े और उन्होंने नौकर को इशारा किया कि व्हील चेयर को धक्का देकर के अंदर ले आओ। जैसा आप सब जानते हैं उस ज़माने में साई कुलवंत हॉल नहीं था। पुट्टपर्ती में प्रशांति मंदिर के अंदर बालू रेत फैली हुई थी। वह नौकर ने बहुत ज़ोर लगा करके उस बालू रेत से उसको किसी तरह आश्रम मंदिर के पास तक लेकर के आ गए। पर जब वो मंदिर के ऊपर का जो पोर्शन आता है उस पर चढ़ाने में जब उनको मेहनत लग रही थी और वे ऊपर नहीं कर पा रहे थे तो स्वामी ने हम में से कुछ छात्रों की ओर देखा और कहा, जाओ मदद करो। हम फौरन उठे 3-4 बच्चे और उठ करके एकदम धक्का लगाया और व्हील चेयर को ला करके जो वरांडा है उसके ऊपर ला करके ले आए। अब स्वामी बहुत जैसी एक कृष्ण वाली मोहक मुस्कान लेकर के उनके अंकल की ओर निहार रहे थे, मान लो उनके मन में कुछ मस्ती सूझ रही है। तो स्वामी उनके पास में गए और व्हील चेयर जहां आकर के रुकी थी, मैं बिल्कुल व्हील चेयर के आप मान करके चलिए 1 या 1.5 फुट आगे था। तो मैं जब स्वामी आकर के मेरे सामने खड़े हुए तो मैं स्वामी का चेहरा पूरा देख सकता था और मैं स्वामी की ओर एक टक निहार रहा था। और स्वामी अचानक उनके अंकल से मुखातिब हुए और कहा, चलिए हम आपसे बात करेंगे, आपको इंटरव्यू देते, आइए इंटरव्यू में आइए।
तो नौकर ने उठ करके व्हीलचेयर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो स्वामी ने उनको ठहरा दिया, बोले आप नहीं, केवल इनको बुलाया है। तो अंकल जो थे सिंह साहब के, वे बड़े अचंभित होकर के स्वामी की ओर देख रहे थे कि मैं तो चल ही नहीं पाता और भगवान मुझे चलने का कह रहे हैं। फिर स्वामी ने कहा गेट अप एंड वॉक, उठो और चल करके आओ। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया अपनी व्हील चेयर से उठने का। उनका उस प्रयास में पूरा चेहरा लाल हो गया, पर वो पूरे प्रयास के बाद भी अपने हाथों के बल उठ नहीं पाए। फिर अचानक स्वामी का चेहरा बदल गया। अभी तक जो वो मनमोहक कृष्ण वाली और नटखट मुस्कान लिए हुए थे वह अचानक गायब हो गई और स्वामी उनकी ओर देखे, बोले ये क्या कर रहे हैं, उठिए और आइए। वो फिर उन्होंने प्रयास किया, दूसरी बार भी वे नहीं उठ पाए। अब इसके बाद तीसरी बार स्वामी ने एकदम अपना कदम पीछे किया और हाथ ऐसे हवा में लहराया, और जो ही हाथ हवा में लहराया स्वामी के हाथ में विभूति आ गई। स्वामी ने विभूति उनके माथे पर लगाई, उनके गले पर लगाई और बची हुई विभूति उनके दोनों घुटनों पर लगाई, और घुटनों पर लगा करके जोर से एक बार घुटने पर हाथ मारा, दूसरी बार घुटने पर हाथ मारा। और उस समय भगवान ऐसा लग रहा था मान लो एक परमेश्वर की तरह पूरे कमांड में हैं। और स्वामी 2 कदम पीछे हटे और मैंने पहली बार स्वामी के मुख से ऐसी गर्जना सुनी मान लो बादल गरज रहे हों, और स्वामी उस प्रकृति के मालिक की तरह उन्होंने कमांड किया और उस व्यक्ति को कहा अंग्रेजी में 3 शब्द, गेट अप एंड वॉक। मान लो ब्रह्मांड नायक का यह हुक्म था, उस व्यक्ति ने वापस चेष्टा करी। अब इस बार वह खड़ा होने में सफल हो गए। जो ही खड़े हुए और उन्होंने व्हील चेयर के आगे पहला कदम रखा और दूसरा कदम रख रहे थे तो गिरने को हुए, सब दौड़े। अचानक स्वामी ने रोक दिया और स्वामी ने उनकी उंगली पकड़ ली, केवल उंगली थाम ली, और एक उंगली थामी और उस उंगली को पकड़ करके स्वामी पीछे पीछे होकर के चल रहे हैं और वह सामने की तरफ से आ रहा है। हम सब के बीच में से बाबा उनको चला करके ले गए, इंटरव्यू रूम में ले गए और दरवाजा बंद हो गया। व्हीलचेयर वहीं की वहीं पड़ी रह गई। हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा कि सुना तो था सूरदास की कविता में, जाकी कृपा पंघू गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दरसाई। पर यहां वाकई अपनी आंखों के समक्ष देखा कि कैसे एक व्हीलचेयर पे बैठे हुए व्यक्ति को, जो पता नहीं कितने बरसों से बैठे हुए थे, उनको स्वामी ने चला दिया। अब हमें लगा आज का इंटरव्यू तो बहुत लंबा चलेगा, पर हम भी कमर कस के बैठ गए कि जब तक स्वामी बाहर नहीं आएंगे हम उठेंगे नहीं। पर यह क्या, 7 या 8 मिनट के अंदर हमने देखा दरवाजा खुला और वो सिंह साहब बाहर आए, और सिंह साहब के जो चाचा थे ऐसे हाथ जोड़े हुए और उनके पूरे चेहरे पर विभूति भरी हुई, और केवल जो आंखों में से 2 गंगा यमुना बह रही हैं वहां विभूति हट गई, और वो बिल्कुल बच्चे की तरह फफक फफक करके रो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, और दिख रहा है कि वो प्रेम के आंसू हैं। वे बार बार बाबा को देखते बहुत कृतज्ञता की दृष्टि से, और बाबा उनको ऐसे देखते कि जैसे भगवान श्री कृष्ण एक मूक गैया को देखते हैं या उसके बछड़े को देखते हैं। उतना स्नेह स्वामी की आंखों में झलक रहा था, और स्वामी उनको इशारा कर रहे थे, वॉक वॉक, चलो जाओ जाओ। और सब व्यक्तियों के सामने पूरा प्रशांति निलयम इस चीज को अनुभव कर रहा था। जितने भक्त वहां बैठे हुए थे, जितने लोग वरांडा में बैठे हुए थे, जितने छात्र बैठे हुए थे, सब अचंभित होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की ओर देख रहे थे। और वह व्यक्ति चल करके आए और उनका जो सर्वेंट थे, उनके जो नौकर थे, उन्होंने उस व्हीलचेयर को लिया और खाली व्हीलचेयर लेकर के गए। वे बिना किसी सहायता से वरांडे के नीचे जो स्लोप है उस पर उतरे और धीमे धीमे कदम रखते हुए जहां उनकी गाड़ी इस प्रशांति के गेट पर खड़ी हुई थी वहां जाकर के रुक गए, और एक हाथ से उन्होंने गाड़ी का बोनेट पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वे बार बार भगवान की ओर देख रहे थे। फिर दोनों हाथ जोड़ लिए और रो रहे थे, और स्वामी बार बार उनको वेव कर रहे थे, कभी अभय हस्त दे रहे थे, कभी उनकी ओर मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक हम सब की ओर मुखातिब हुए, हम सब की ओर देखा और बोलते, देखा देखा तुमने, यह व्यक्ति 25 साल से नहीं चला था,
आज स्वामी की कृपा से चला है तो देखो कितना खुश है। हम सब ने पलट करके देखा, वो बेचारा आंखों में बस आंसू लिए हुए स्वामी को कृतज्ञता की दृष्टि से देख रहे थे और स्वामी उनको वेव कर रहे थे। और उस समय स्वामी के चेहरे से जो प्रसन्नता झलक रही थी, ऐसा लग रहा था मान लो वाकई पुरुष और प्रकृति में कोई फर्क नहीं है और यह एक छोटी सी लीला भगवान ने हम सबके सामने करके दिखाई। और अचानक स्वामी ठीक मेरे सामने आए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे जहां दशावतार द्वार है, और दोनों हाथ से स्वामी ने ऐसे ऐसे हाथ करने शुरू किए और अचानक आसमान की ओर देखने लगे और मान लो आसमान में कुछ अदृश्य सी चीज लिख रहे हैं। और अचानक स्वामी का एक्सप्रेशन चेहरे का पूरा बदल गया और स्वामी ने अपनी आंखों में उदासी भरे हुए स्वर में बोला, क्या फायदा, क्या फायदा, इतना पैसा, इतना नौकर, किस काम का। देखो 25 साल से यह आदमी नहीं चला, आज स्वामी जी ने चलाया तो कितना खुश है। क्या फायदा, क्या फायदा। बस यही स्वामी बोले और इसके बाद पलटे तो वही नटखट कृष्ण वापस आ चुके थे, वही आंखों में चमक, वही चेहरे पर मुस्कान और वही स्वामी जिनको हम जानते हैं कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम सब स्वामी के बाल गोपाल हैं और वह कृष्ण कन्हैया बन के हमारे सामने एक छोटी सी लीला कर रहे हैं और जिसमें उनको भी अति प्रसन्नता हो रही है। पर वह एक क्षण जो स्वामी का चेहरा बदला, उससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मान लो व्हेन भगवान सेज, वो बोलते हैं व्हेन आई एम अलोन आई एम गॉड, तो वाकई वह झलक आ गई थी कि जब वे अपने आप से बात कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वामी वाकई ही भगवान है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। आज का हमारा साई प्रेमवाणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें अपने सुझाव एवं परामर्श व्हाट्सएप पर भेजना न भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 और एक बार 9393 258 258। हिंदी भाषा के ये सारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां कमेंट बॉक्स में अपने विचार सबसे शेयर करें। हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साई राम।